Good morning, students. I am VP Sharma standing before you. Today we shall read about the fifth chapter of your book, Footprints Without Feet. This chapter is very interesting chapter. It contains the story of a scientist, Mr. Griffin. This scientist was very brilliant and he kept on conducting experiments after experiments. Finally, he was able to discover a wonderful drug which could make human body transparent. That is, a man could become invisible. He could see everybody, but other people could never see him. So, this was the drug that he discovered. After discovering this, he started taking undue advantage. You know, most of the scientific discoveries have been utilized for the betterment of the society at large, isn't it? But this scientist was not of a good mind. He was a lawless person. He was a person who took pleasure by torturing others, by hurting others. Such was the nature of this man, that is Griffin. When he discovered this thing, now he could make himself invisible and walk down anywhere without being seen. The only thing was that in order to become invisible, he had to remove all his clothes. Only then he could become invisible. Now he could walk down the street, hit one person, two person, three persons and get away. People will see who hit them, but nobody was visible. He would hit another boy and would laugh. So this is what he started doing. He started torturing people. He started hitting people. Now people were very angry with him. This man, first of all, when he was walking in the street, he was followed by two little boys. Those two little boys did not see him. They saw only his footprints. They were surprised. These footprints were quite fresh, but nobody was standing before them. They were surprised, they were amazed. How could it happen? But it did happen. Now, this man, this scientist, Griffin, he started taking advantage. But one difficulty with this scientist was that when he threw off all his clothes in order to become invisible, he was shivering with cold because the season at that time, it was December, January or January, Feb. You know, in London, in England, this is the peak of winter season. So when he cast off his clothes, he became invisible. But the winter, the cold was becoming intolerable to him. He could not remain in this way. So, in order to get some warmth and something to eat, he entered a big London store. He entered there, and there, because he was now invisible, he was not caught, he was not seen by anybody. So, he roamed in the London store. He selected clothes in order to put them on so that he could save himself from winter, from cold. So he selected his clothes. He took some eatables also. But now
time was to sleep. So when he put on all the clothes, now he became visible and he simply dropped down on the pile of some quilts. कुछ रजाई गद्दे थे बच्चों जो उस स्टोर में भरे पड़े थे, वो उन गद्दों के ऊपर ही सो गया। अब ये सो तो गया, इसको इतनी नींद आई कि इसको पता नहीं लगा कि सारी नाइट कब गुजर गई, सारी रात कब गुजर गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उसकी आंखें खुली तो उस लंदन स्टोर में ऑलरेडी कुछ एम्प्लॉइज एंटर कर चुके थे, कुछ एम्प्लॉइज आ चुके थे। उनमें से दो ने उसको देख लिया और दो ने जब उसको देखा तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो कोई बर्गलर है, ये तो कोई चोर है। उन्होंने उसको चेज किया, उसका पीछा किया। अब ये जो साइंटिस्ट है इसने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए ही सिंपली रैन डाउन। अब एक ही रास्ता था इसके पास कि इनविजिबल होने का, और वो रास्ता था जल्दी जल्दी से अपने कपड़े उतार के फेंकता जाए। जहाँ से वो कपड़े अपना उतार देता था उसका वही पार्ट इनविजिबल हो जाता था। तो इस तरह से बच्चों इसने भाग के अपने कपड़े डाल के वहाँ से फेंक के इसने अपनी जान उन लंदन स्टोर के कर्मचारियों से बचाई। इसके बाद वो एक थिएट्रिकल हाउस में आ जाता है और उस थिएट्रिकल हाउस में वहाँ अपने काम की जो चीज़ें हैं वो ले लेता है। जैसे एक पिंक नोज ले लेता है, कुछ मेकअप का सामान ले लेता है, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट था बच्चों, ये इतना कमाल का साइंटिस्ट था कि इसके हेड के ऊपर का कोई पार्ट विजिबल नहीं था। इसलिए इसको हेडलेस मैन कहा जाता था कि भाई ये तो बिना गर्दन का, बिना हेड का ये आदमी है। इसको देख के लोग हैरान होते थे। तो इसने क्या किया, कुछ विस्कर्स, बड़ी बड़ी मूछें, दाढ़ी, जैसे हम मेकअप कर लेते हैं, अपने सिर पे इसने सारे बैंडेजेस वगैरह लगा ली। ऐसे लगा के अपने आप को ये करके बाहर निकला। अब इसको रियलाइज हुआ कि भाई ऐसे कब तक छिपते फिरोगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया बच्चों आपको, लंदन का जो ये टाइम था ये बहुत ही ज़्यादा चिलिंग टाइम था, ठंड का टाइम था। तो उसने सोचा कि भाई जो मैंने अभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स अपने और करने हैं, तो मैं यहाँ से, ये तो शहर का काम है, यहाँ पे तो कोई ना कोई मुझे देखता रहेगा। वो क्या करता है, एक शहर से दूरी पे ट्रेन पकड़ के पहुँच जाता है और एक आइपिंग विलेज है, विलेज का नाम है आइपिंग, उसमें वो चला जाता है। ही गोज देयर एंड वहाँ पे जाके ही टेक्स 2 rooms ऑन हायर, रेंट पे 2 कमरे वो ले लेता है और एक जो होटल है, होटल नुमा, जैसे धर्मशाला होती है अपने इंडिया में, इस तरह का एक छोटा होटल है वहाँ पे। और उसकी जो मालकिन है वो मिसिज हॉल है। जो मिसिज हॉल है उससे जाके वो बातें करता है। और वो टाइम क्योंकि जनवरी फेब का था, सबके जो रेस्ट हाउसेज थे, सबके गेस्ट हाउसेज थे, वो खाली पड़े थे, क्योंकि इतने कोल्ड सीजन में कोई भी टूरिस्ट बाहर से नहीं आता था। इसलिए मिसेज हॉल को बड़ी खुशी हुई कि भाई चलो इस सीजन में तुम्हारे घर पे कोई तो आया, तुम्हारे होटल में रहने के लिए कोई तो आया। तो इसलिए उस लेडी ने क्या किया, पूरी कोशिश की कि इस मिस्टर ग्रिफिन को किसी तरह से अच्छे ह्यूमर में रखने के लिए, अच्छे मूड में रखने के लिए वो बार बार उसके कमरे में जाती और कहती, सर मैं आपके लिए चाय ला दूँ, सर मैं आपके कपड़े गीले हो गए हैं, मैं इनको सुखा के ला दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। लेकिन ये जो ग्रिफिन था, इसको इन सारी बातों से चिढ़ होती थी। ये जो साइंटिस्ट था बच्चों, ये चाहता था कि भाई मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, जो मैं कुछ करना चाहूँ मैं अपने रूम में आराम से बैठ के एक्सपेरिमेंट करता रहूँ। इसलिए ही डिड नॉट वांट एनीबडी टू डिस्टर्ब हिम।
इवन द लैंडलेडी, जो उस होटल की मालिक थी मिसिज हॉल, उसको भी वो नहीं चाहता था कि वो बार बार आके उसको डिस्टर्ब करे। अब मिसिज हॉल को ये लगा तो बड़ा अजीब, बहुत ही अजीब लगा भाई ये किस तरह की लेडी है, ये बार बार मेरे उसमें रूम में आके ताका जाके करती। लेकिन मिसिज हॉल कहती है भाई ये आदमी तो कुछ अजीब तरह का लगा मुझे, किस तरह का ये आदमी है, मैं इसके रूम में जाती हूँ तो ये पसंद नहीं करता, मैं इसको कोई सर्विस ऑफर करती हूँ ये इसका टेम्पर लूज हो जाता है, ये आदमी किस तरह का है, और अपना फेस मेरे सामने कभी लेके नहीं आता। तो उसे भी लगा कि ये आदमी कुछ अजीब तरह का है। लेकिन क्योंकि उसने एडवांस में तो उसको किराया दे दिया था 2 महीने का, और ज़्यादा किराया दे दिया था जितना वो मांगती थी। जो छोटा मोटा होटल में रूम में कोई नुकसान हो जाता था तो उसका एक ही स्टेटमेंट होता था, पुट इट टू माई बिल, इसको मेरे बिल में जोड़ देना। अगर मान लिया कोई क्रॉकरी टूट गई, कोई और छोटा मोटा कोई डैमेज हो गया, तो वो बोलती तो कहता पुट इट एड इट टू माई होटल बिल। तो उसने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसा कि मैंने बच्चों बताया कि ये जो आदमी था ये नेगेटिव माइंड का था, लॉलेस पर्सन था। इसने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट बच्चों कर लिया था, लेकिन अपने उस एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट क्या था, हाउ टू बिकम इनविजिबल, अपने को अदृश्य कैसे बनाए, इसने बना लिया। लेकिन उस चीज को बजाय फायदा उठाने के, बजाय सोसाइटी को कोई फायदा देने के, इसने अपना ही साम्राज्य बनाना चाहा। अब इसका दिल क्या करता, गली में जा रहा होता, चाहे मर्जी जिसको ठोकर मार देता, चाहे मर्जी किसी को स्लैप लगा देता, और वो बेचारा रोने लगता या रिएक्ट करता, ये देख के हंसता। लेकिन इसको कोई नहीं देख सकता था। इस तरह का ये आदमी था। एक नेचर और है बच्चों इसकी कि ये विंडिक्टिव बड़ा है। विंडिक्टिव किसका कहते हैं, जो बात बात में बदला लेने की ठाने, बात बात में जो यानी कहता है अच्छा तूने मेरे साथ ऐसा किया, ओके ठीक है मैं तेरे को मजा चखाता हूँ, मैं बदला लूंगा इसका। जो इसके होटल के मालिक थे मिसेज हॉल और उसके हस्बैंड मिस्टर हॉल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बार उनको डाउट हो गया था इसके बारे में भाई ये आदमी किस तरह का है, दे वांटेड टू। एक बार वो इसके कमरे में गए, और कमरे में गए तो कमरे में देयर वाज नोबडी, दरवाजा खुला था, कुछ कोई भी तो नहीं था। इन्हें हैरानी हुई भी कमरा खुला है, वो आदमी कहाँ गया। जब वो उसके बेड के पास गए तो जो उनका जो रूम का एक किनारा है वहां से उड़ के एक हैट अपने आप उड़ के आया और मिसेज हॉल के चेहरे पे आके लगा। थोड़ी देर में उसके रूम में रखी एक कुर्सी है वो उड़ने लगी और उड़ के मिसेज हॉल का पीछा करने लगी। बेचारे ने बड़ी मुश्किल से वहाँ से कमरे से भाग के जीने में से गिरते पड़ते उतर के किसी तरह मुश्किल से अपनी जान बचाई। इस तरह का ये आदमी है, मतलब कर तो ये काम रहा था लेकिन दिखाई किसी को नहीं देता। कोई चीज उठा के मारता, खुद ये मार रहा था बिकॉज ही वॉज इनविजिबल, दिखाई किसी को देता नहीं था। तो वो बड़े परेशान, भाई ये कैसा आदमी आ गया है। एक और चीज़ थी बच्चों, इसके जितने भी सराउंडिंग्स के लोग थे दे वर आल्सो नॉट हैप्पी विद हिम, कि भाई ये मिस्टीरियस टाइप का आदमी है, किस तरह का आदमी है। उनका भी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि भाई इस आदमी को हटाओ यहाँ से। अब इन दोनों को ये गुस्सा आने लगा, भाई ये आदमी तो डेली हमारे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसके लिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं। जब इसको पता लगा मिस्टर ग्रिफिन को कि भाई ये मुझे तो कमरे से निकालना चाहते हैं, तो इसका पारा भी चढ़ गया। इसने क्या किया, खुद बाहर निकल के उनके घर को ही आग लगा दी। जिस रूम में ये रहता था ही सेट दैट रूम ऑन फायर। इस तरह का ये आदमी था। फिर वहाँ से निकल के बच्चों ये आगे चला गया और जहाँ जिधर भी जाता ये प्रॉब्लम करने लगा। इन्होंने क्या किया, इसके पास जितने पैसे थे वो पैसे जल्दी ख़त्म हो गए। उधर से इसके होटल का जो किराया था वो बढ़ रहा था, वो मांगते थे,
तो कहने लगा भाई देखो मेरे पास जो रेडी कैश था वो तो एग्जॉस्ट हो गया है, लेकिन जल्दी मेरे पास एक बड़ा चेक आएगा। अब वो हैरान भाई इसको चेक कहाँ से आएगा। और अगले दिन इसने क्या किया, इसने ग्रिफिन ने उसकी पेमेंट कर दी। कुछ पैसा इसके पास आ गया था, चेक तो नहीं था लेकिन वो कैश था। वो हैरान ये कैश कहाँ से आया। इसके पीछे भी बच्चों स्टोरी है। ये क्या करता है ग्रिफिन, वहाँ उस गांव के आइपिंग विलेज के जो क्लर्जीमैन थे, क्लर्जीमैन कौन होता है बच्चों, पादरी जो चर्च में काम करते हैं, क्लर्जीमैन के घर में ये घुस जाता है। और वो दोनों मियाँ बीवी बेचारे, रात का टाइम होता है, वो सो रहे होते हैं और चुपके से बिना किसी को नजर में आए ये उनके घर में घुस जाता है और अलमीरा की दराज वगैरह निकालने लगता है, खोलने लगता है। उन्हें जब आवाज़ सी लगती है तो उठ के जाके देखते हैं भाई ये किसी रूम से खटखट की आवाज़ आ रही है, कौन है। ये जाके देखते हैं देयर इज नोबडी। और इस तरह से उन्हें दिखाई तो कुछ नहीं देता, लेकिन ये जो ग्रिफिन है, ये जो साइंटिस्ट है, ये क्या करता है, उनके यहाँ से सारा कैश निकाल के चोरी करके ले जाता है और नेक्स्ट डे जाके मिसेज हॉल के उसका रूम का वो रेंट दे देता है। ये इस तरह का आदमी है, मतलब कोई भी साइड इसकी पॉजिटिव नहीं है। जब वो बहुत ही ज़्यादा तंग हो गए तो वो क्या करते हैं, उन्होंने चुपके से पुलिस को फ़ोन कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे होटल में एक ऐसा आदमी आ गया है जो सबको मार रहा है, सब कुछ तोड़फोड़ कर रहा है और इवन चोरी भी कर रहा है। तो वहाँ से जो कांस्टेबल आता है, मिस्टर जेफर्स उसका नाम है, वो जेफर्स वो आके इससे पूछताछ करता है। अब आया तो था वो इसके कमरे में पूछताछ करने, लेकिन कमरे में इसको कोई दिखाई नहीं देता। वो कहता है यार मिस्टर साइंटिस्ट वेयर आर यू, कम व्हाई आर यू डूइंग दिस। ये ऐसे हवा में बोलने लगता है, तभी एक जोर का मुक्का उसके चेहरे पे पता नहीं कहाँ से आके लगता है। जो सिपाही है बेचारा वो इस अटैक के लिए तैयार नहीं था। वो इस गुस्सा इतना जोर से इसके लगता है कि ये बेचारा गिर जाता है और गिर जाने के बाद ये अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और इस तरह से वो जो साइंटिस्ट है उस रूम में से निकल के भाग जाता है। अब डे बाय डे उसकी जो आदतें इतनी गलत होती जा रही हैं कि वो सारे उल्टे काम करने शुरू कर देता है। यहाँ तक कि भी आता है कि एक बार एक कोई बेचारा मिडिल एज मैन था, कर्मचारी था, अपने ऑफिस से अपने घर पे लंच करने के लिए आया था। इसने ये गुस्से में था, इसने क्या किया, उसके सिर पे वो रॉड मार डाली और उसको बेचारे को जान से मार दिया। अब क्योंकि ये इनविजिबल था, इसको कोई पकड़ नहीं सकता था। That was the reason, that is how he started torturing people, killing innocent people without any reason. Now he had really become a big threat to the public and to the public safety. Now police got aware. अब मैंने बच्चों शुरू में आपको बताया था कि ये जो आपकी बुक में जो चैप्टर है ये एक बड़े नावल में से लिया गया है चैप्टर है, और उस नावल का नाम यही था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और उसके अंदर क्योंकि वो दैट इज ए बिग नावल, उसमें बहुत सारे इसके किस्से दिए हुए हैं, कहाँ ये कैसे कैसे चला जाता है और कैसे ये लोगों को टॉर्चर करता है। एक स्टेज ऐसे आती है कि हर कहीं से ये भागता हुआ जा रहा था और किसी के घर में जाके घुस जाता है। वहाँ पर उसे पता लगता है कि वो घर तो एक ऐसे डॉक्टर का था जो कभी इसका क्लास फेलो होता था। बस एक गलती कर देता है ये कि उसको अपने मन की सारी बातें बतला देता है कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ। ये वो कर देता है इस बात का थोड़ा सा। सो फाइनली जब सारे लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं
तो एक टाइम ऐसा आता है कि लोग इसको घेर लेते हैं, लेकिन ये दिखाई किसी को नहीं पड़ता है। कोई इसको हवा में ऐसे चला के किसी तरह से पकड़ लेता है, तो इसका जो डॉक्टर फ्रेंड था वो इसको दबोच लेता है, और उसे पता था ये इनविजिबल हो जाता है, और वो लोग फिर इसको पता है, वो कहते हैं भाई यहाँ पे इधर इतनी जगह पे ये इस टाइम मैंने इसको नीचे गिरा रखा है। वो लोग उसको अंधाधुंध मारना शुरू कर देते हैं, और फाइनली ये साइंटिस्ट जो सोसाइटी के लिए बिग डेंजर बन गया था, खतरा बन गया था बच्चों, ही इन दिस वे ही डाइज। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द चैप्टर Footprints Without Feet. Hope you would understand it. Thank you.